lecture. Like so while I was just exploring this Golang, तो मुझे एक बात पता चली. Like I think I should share all those things with you. So that's why I'm creating this lecture. So first of all, just give you the background, like what we are gonna exploring today. So everyone knows about the passing a parameter into a function. Okay, so जैसे अपन normally, if you actually see how do we pass a parameter into a function, there is a generic way that we do. Okay, basically दो types होते हैं parameter pass करने के. First one is pass by value and another one is pass by reference. So was same cheese, like if you learn some more things about the how do we pass by value and how do we pass by reference, so just a small pointer का difference होता है. So similarly, जैसे अगर if we are actually creating a normal function and inside that we are just passing a normal parameter param1 param2 param3 and so on, तो वो हो गए normal parameter passing. And if you are passing a pointer, then instead of passing a param1, you generally pass a star or something like that. So based on your requirement, तो generally pointer reference pass करते हैं, otherwise value pass करते हैं. So एक function में we generally used to this is a traditional method that in every programming language they do have. तो basically अपन क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर्स रखते हैं. लेट्स से आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज ऐड एंड आई विल स्पेसिफाई द पैरामीटर a and पैरामीटर b. So that is a generic way. So I will show you the another way of passing a parameter. Okay, so let me just create one file. Sorry for delay, I guess. Okay. So basically today I have learned this particular thing. So while learning this thing, I came to know कि instead of directly creating a whole bunch of params and passing all those params into a function, तो अपन ऐसा कर सकते हैं. Let's say I have a function. Okay, let's say the function. Okay, function इसको 2 करते हैं. Okay, so generic way is like parameter 1 उसका data type and parameter 2 उसका type. This is a normal tradition and so on. ठीक है, ये normal tradition हो गया. But what we gonna do over here, तो अभी मैंने यहाँ पे struct parameters पास कर दिया है. लेट्स से तो param 1 मैं स्पेसिफाई करता हूँ, param 2 स्पेसिफाई करता हूँ and param 3 and so on. ठीक है, you can specify as many parameters as you want. तो जनरली पहले अपन फंक्शंस में डायरेक्टली पैरामीटर पास करते थे, बट गोलैंग में ऐसी चीज है, लाइक यू कैन यूज दिस स्ट्रक्ट एंड यू कैन पास दिस स्ट्रक्ट एज अ पैरामीटर. ओके, सो बेसिकली हाउ डू वी डू दैट? सिंपली जस्ट एक इंस्टेंस बनाएंगे, इंस्टेंस नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्ट्रक्ट का. And so over here we are just okay, so let's modify this thing. Okay, instead of params, let's give a nice name. Let's say the book. Okay, book में 3 चीजें होती है, name होता है, do something name, and let's give it a save at. अच्छी वाली बुक बनाते हैं, सेव एट एंड मॉडिफाइड. ओके, ये 3 पैरामीटर मैंने कंसिडर किए हैं. ठीक है, अभी मैं जनरली क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको एज अ बंच ऑफ पैरामीटर्स को मैं यहाँ से भी डायरेक्टली पास कर सकता हूँ. ठीक है, इसको बुक कर देते हैं, यहाँ पे बुक्स, क्योंकि स्ट्रक होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, तो इसीलिए अपन इसको बुक्स कर देंगे, और विच एक्चुअली होल्डिंग मल्टीपल बुक्स. ठीक है,
अभी इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली आई विल चेंज सेव एट इक्वल टू, लेट्स से द स्ट्रिंग आई एम गिविंग इट्स सेव एट दिस, ठीक है, ये कुछ भी, एंड बुक डॉट मॉडिफाइड, इसको नाउ कर देंगे, इसका डेटा टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक वे हो गया जहां पर वेयर वी आर डायरेक्टली पासिंग दिस स्ट्रक्ट एज अ पैरामीटर, and this particular book is a value that we are currently passing, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंटर यूज नहीं किया है, आप डायरेक्ट इफ यू मॉडिफाई जस्ट लाइक यूजिंग बाय रेफरेंस। तो ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ पे ये वी आर पासिंग इट एज अ वैल्यू, ओके, दिस इज दिस बुक ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग द वैल्यू। अगर मैं इसको स्टार कर दूँ तो ये पॉइंटर बन जाएगा एंड इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ रेफरेंस, ओके। तो और ये फर्स्ट वे हो गया। मैं सेम वे में एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूँ जहाँ पे आई विल राइट अ फंक्शन टू, दूसरा फंक्शन लिखते जान दो, फंक्शन थ्री, ठीक है। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ पासिंग ओवर डायरेक्टली ओवर हियर, आई कैन पास बिफोर दिस फंक्शन। मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ जहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें डिफरेंस क्या है अभी मैं ये बताता हूँ। मैं पहले एक लिख लूँ इसको पूरा, सेव एट, एक डेट डाल देते हैं 2022/01/01, ठीक है, एंड बुक डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। हाँ, तो अभी इसमें डिफरेंसेस क्या है, जैसे मैंने ये वाला फंक्शन लिखा है जहाँ पे ये फंक्शन टू है, और ये वाला लिखा है जो फंक्शन थ्री है जिसमें आगे मैंने ये एज अ रिसीवर पास किया है। तो बेसिकली वी कॉल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ रिसीवर which defines the behavior of this particular function or the type of this particular function, and this particular books is of type book, which is again the value. तो बेसिकली वो वैल्यू ले रहा है, एंड so just the difference over here I will show you over here, just a minute. Hmm. तो बेसिकली बिफोर प्रोसीडिंग, जस्ट बिफोर कॉलिंग दिस टू फंक्शन, ये एक चीज होती है जहाँ पे ये फंक्शन एज अ पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, स्ट्रक्ट एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। इसमें एक ड्रॉबैक्स है दैट आई वांटेड टू मेंशन, कि ये बहुत इनएफिशिएंट रहता है फॉर द लार्जर स्ट्रक्स। इफ यू हैव लाइक अ लार्जर स्ट्रक्स तो फिर उस केस में वो इनएफिशिएंट होगा, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड लाइक कॉपिंग अ लॉट ऑफ डेटा। सो वो एक चीज़ होती है, बट इफ़ यू अगेन यूज बाय रेफरेंस, ये करंटली स्ट्रक बाय वैल्यू यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बट इफ यू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रक बाय रेफरेंस using a pointer, तो फिर उस केस में the performance is little bit faster, and there are very less chances of any errors or something like that, ठीक है। बट उसमें भी एक चीज़ आती है जहाँ पे वो आपको, लेट्स से पॉइंटर नल है तो फिर उस केस में क्या होगा, या पॉइंटर अनडिफाइंड है तो उस केस में क्या होगा, तो दैट विल ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, but if you are considering the real time or the industrial based things, तो उस केस में no one actually prefers this kind of scenarios where they are actually passing a struct directly, a struct, unless and until they wanted to modify their structs so frequently, ठीक है। But on the other hand, whenever we are passing this with this third method, like a third function,
जहाँ पे ये फंक्शन थ्री जो यहाँ पे लिखा हुआ है, it's actually behaves as a receiver parameters. So basically that which appears before the function name. So this is like a similar concept in object oriented programming. If you have learned about the object oriented programming, what it is and how it behaves, तो फिर तुमको ये basically रिकॉल होगा या समझ में आएगा. Or if you are not aware about the what is object oriented programming, you can refer the other tutorials that I have created. So basically this is again the this function 3 that belongs to the object, and basically it means कि ये object you can access its property and methods and so on. ठीक है. So this is the case. Now let's create, first of all let's create a instance of this book. Okay, so let create one book जहाँ पे we will do books. Let's give it a name of that book is Ravindra. Okay, just giving any random name. Okay, so let's give save at some static value, I guess so. एक काम कर सकते हैं, like let's give it a time dot now and it will parse it. We will parse all this thing. Value दे देते हैं. Currently let's keep this empty so we will understand कि वो actual में change कर रहा है नहीं. Modified time dot now कर देते हैं इसको. So basically we have created an instance of this book. So basically there are the two ways that just I told you. तो function में 2 जब call करूँगा, shit, sorry guys, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप में भी स्लो हो रहा है. फंक्शन 2 में कॉल करता हूँ जहाँ पे मैं बुक एज अ बुक पास कर दूंगा. ठीक है. इसमें इसमें बेसिकली ये चीज़ होंगी. यहाँ पे सेव डाटा एंड मॉडिफाइड डाटा आ जाएगा आपको. सो लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ से पैरामीटर यहाँ से प्रिंट नहीं करवाते अपन. एक काम करते हैं. और बेसिकली ये इंस्टेंस है, यू कैन एक्सेस अदर मेथड्स टू. तो यहाँ से मैं फंक्शन 3 भी एक्सेस कर सकता हूँ. सो दैट इज अनदर वे. यू कैन नॉट एक्सेस फंक्शन 2 बट यू कैन एक्सेस डेफिनेटली द फंक्शन 3. सी मैं इसको फंक्शन 2 कर दूँ तो वो मेरे को एरर दे देगा, बट इफ आई डू द फंक्शन 3 तो वो फंक्शन 3 एक्सेसिबल होगा. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कि मैं एक नॉर्मली एक इंस्टेंस क्रिएट कर दूँ मेरे स्ट्रक का, एंड आई जस्ट कॉल दिस इंस्टेंस बेस्ड ऑन द हाउ मेनी मेथड्स दैट इंस्टेंस हैज. ठीक है. सो दिस इज अ वे. अगर मैं इसको अभी लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ. Or let's print it outside so it will be much understandable. सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ. सो बेसिकली यहाँ पे अपन वैल्यू पास बाय वैल्यू कर रहे हैं. सो वी नीड टू प्रिंट इट ओवर हियर. अगर रेफरेंस कर देते तो फिर वो बाहर अपन प्रिंट करवा सकते थे. अपन डायरेक्टली बुक प्रिंट करवाते हैं. ठीक है. यहाँ पे भी एक चीज़ करवाते हैं, यहाँ पे भी बुक की प्रिंट करवा देते हैं. बुक. ठीक है. एंड नाउ सिंपली वी विल रन दिस गो फाइल. ठीक है. So you guys must be seeing this thing. हाँ. सो यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा
there is something Ravindra, and the time got printed. ओके 22, हाँ, एक 20 वाला प्रिंट हुआ है, एक 22 वाला प्रिंट हुआ है, एंड दिस इज जस्ट अ टाइम स्टैम्प। वो उसने मे बी प्रिंट करते टाइम में ऑब्जेक्ट वाइज प्रिंट करता है, सो इट्स जस्ट अ मेमोरी दैट इट हैज रिटन। ये बेसिकली टाइम है। यू कैन कन्वर्ट इट एज पर योर प्रेफरेंस। यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाया, सो दैट्स व्हाई इट केम लाइक दिस। अगर मैं इसको स्ट्रिंग करवाऊँ तो आई वुड बी एबल टू शो यू एग्जैक्टली, but yeah, this is how it's work. I just wanted to show you अपन normal parameters के अलावा भी in the Go there is another these two different ways we can pass a parameter and we can utilize this uh, facility that Go provides. So I feel कि ये जो थर्ड वाला वे है वो बहुत अच्छा है if you wanted to access some more methods which are like associated with this particular object, the books का object. So I guess yeah, in this professional life, or if you say like if you wanted to create some professional code or professional kind of application, तो उस केस में I would suggest कि तुम function 3 kind of scenario consider करो while creating it. Okay, so for this particular lecture, this is it. Stay tuned and follow me for more. Thank you.